Okay, Assalamu alaikum. So, welcome to lecture 19. Uh, so, today, so can you guys hear me? So, today, basically, we will continue with our discussion on clustering. Uh, Previously, we had discussed partitional clustering algorithms, for example, the k-means algorithm. And then we also discussed the hierarchical clustering algorithm, which was based on merging clusters as we build a dendrogram. And we also talked about an incremental version of a hierarchical clustering algorithm called BIRCH. And then we discussed an example of the density-based clustering algorithm, uh, basically the DB-scan algorithm. And today we will talk about graph-based clustering and discuss one particular and relatively simple graph-based clustering algorithm. And then after that, if we have time, we will discuss cluster validity, which would be the last topic for the big section on clustering. Uh, so that is actually the agenda for today. Uh, so you had a quiz over the weekend. I can see that the vast majority of you have taken the quiz. So maybe towards the end, I will get some feedback from you regarding the quiz. I had some responses from students, but I'll see if you can give me some verbal feedback during the lecture as well. Your project, there's a lot of activity on the project, I guess, over the weekend. So all of you are working on the project. The project is due now on Friday. The first deliverable is now due on Friday. Okay, with that, I think let's get started. If there is any question you can ask. Okay, in the last lecture, we talked about density-based clustering and specifically DB-scan. So is there any specific question on this algorithm? I think I covered it to the extent that I wanted to cover. But if there's any specific question, we can quickly discuss this before we move on. So one of the key advantages of the density-based clustering algorithm is one of the advantages it's density-based. The notion of a cluster is more robust as compared to prototype-based. So we use density to quantify or qualify a cluster. Secondly, the density-based clustering algorithm can find arbitrary shaped clusters. So that's also a positive. The one negative for this algorithm is that it is quite sensitive to the two parameters. Remember, it used two parameters, main points, the number of minimum points in the neighborhood, and the neighborhood radius, epsilon. So by varying these two parameters, you can get vastly different clusterings for any given data set. So tuning these parameters is somewhat challenging. So oftentimes we have to do a number of runs of the algorithm with different values of these parameters. Of course, there are variations of the DB-scan algorithms that handle this somewhat in their algorithm, but we won't discuss those algorithms in this course. But there are some variations out in the literature. Okay, so can everyone hear me
properly because somewhat silent from your side. I know muted हैं, but एक कोई मुझे बता दे कि आपको सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। बिकॉज मेरी साइड से भी मुझे थोड़ी सी इंडिकेशन मिली थी कि नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो ओके गुड। ऑलराइट, so now I wanted to talk about the notion of a cluster using graph. So we had so far talked about prototype based, we talked about density based, and now we are going to talk about graph based clusters. So these are different notions of how to define a cluster. Okay. So to discuss graph based clusters, I will start with the similarity matrix. So similarity matrix is a matrix that quantifies the pairwise similarity between objects. So if you have n objects, so this matrix is basically n times n matrix. It is symmetric, okay, and contains pairwise similarity values, okay. Okay. So we had already talked about similarity functions S, for example, Sx1 and x2. So this function basically quantifies the similarity between objects x1 and x2. So objects x1 and x2 can be numeric, can be categorical, and this similarity function can be an appropriate similarity function for the data set. For numeric, let's say it could be the Euclidean distance. Of course, Euclidean distance is a distance. It's dissimilarity. Here I'm talking about similarity, so we'll take the inverse of that to find the similarity. Okay. So for any given data set, you can create a dissimilarity matrix D or similarity matrix D. So let me say it's S, capital S, similarity matrix. Okay. So this is one of the requirements for clustering. If you are not able to create a similarity matrix, you won't be able to do clustering on the data. So this is a requirement. Remember, similarity function is a requirement. Without a similarity function, you can't do clustering. Now, from a similarity matrix, we can create a graph. Okay? So in general, Sij is basically the similarity between object xi and object xj. Okay? The element ith row and the jth column of this matrix give us the similarity between objects xi and xj. And in all, we have n objects. So we can represent the information in a similarity matrix as a graph. So graph में आपके पास n nodes होंगे, ठीक है, representing objects, ठीक है, and then edges between nodes represent similarity, and it can be weighted with the similarity value. ठीक है ना? So if you do this, you get, or you can represent this similarity matrix as a graph. So let me see if I can show you a quick figure on this. So if you have an object xi and then you have an object xj, so this is xi and xj, the line between them is the similarity value xi xj. Okay.
And of course, if you have multiple objects, you can create a graph. So graph could be, let's say I'm drawing a graph. So this is a graph. ठीक है ना? So all your objects can be represented using a graph. And the edge between 2 points, two objects. लाइन का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस देख रहे हैं या कोई स्लोप देख रहे हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स? जो लाइन है, जो एज है between 2 points, it quantifies similarity. I'm not drawing this on scale. So if you're drawing this on scale, then इसका मतलब लेट्स से मैं स्केल पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक और ऑब्जेक्ट है, बहुत सिमिलर है, ये क्लोज होंगे. ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट बहुत डिसिमिलर है, तो ये दूर होंगे. ठीक है? जी सर. So you can scale or draw the edges with scale such that if two objects are similar, very high similarity, they are kind of close together or the edge is small. And if the similarity between two objects is low, the edge length would be large. Okay? So the point is कि जो आपके पास जो similarity matrix है S, उसका एक equivalent graph बन सकता है. ठीक है? Where each edge is the value and the two endpoints of that edge represent the objects for which that value is defined. ठीक है? तो ये आपके पास एक ग्राफ बन सकता है. So, any questions? So a couple of questions here. S हमारा similarity matrix है, ठीक है ना? तो of course इस similarity matrix में मैंने ऊपर लिखा था symmetric होता है, ठीक है? But another perspective here is that इसका जो ग्राफ बनेगा, would it be dense or sparse? लिख रहा है? एक सेकेंड. So would the graph be dense or sparse? So S आपका मैट्रिक्स है, उसका ये ग्राफ है. So sparsity का मतलब क्या है? For example, in a graph sense, के दो नोड्स के दरमियान एज नहीं है, ठीक है ना? तो एज नहीं है, इसका मतलब फ्रॉम ए सिमिलैरिटी पर्सपेक्टिव ये है कि दे आर वेरी डिसिमिलर, देयर सिमिलैरिटी इज 0, ठीक है ना? So would you have many objects in a real world data set in which their similarity, pairwise similarity is 0? So there won't be many values in the similarity matrix where the similarity value is 0. Of course, similarity would be 0 for objects of the same. So xi would be 0, of course. But for any other x, xi, xj, this would in general be greater than or equal to 0. Okay? So there is going to be some edge between xi and xj. So as a result, it could be a dense graph or even fully connected graph. Okay? All right. So so remember this कि ये S से जो ग्राफ बनता है ये dense होगा. Now
So given this graph, let me call this graph G. ये अगर एस आई और एस जे में सिमिलरिटी 0 होगी फिर स्पार्स ग्राफ होगा। जी, ज़्यादा वैल्यूज जब 0 होंगी तो ग्राफ स्पार्स होगा। बट रियल वर्ल्ड डेटा सेट में जैसे मैंने कहा कि आपको ज़्यादा सिमिलरिटी वैल्यू 0 नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो बाय in practice the graph from S would be dense, mostly dense. But I just wanted to highlight this now so that इसमें थोड़ा सा issue है। So G let's say is the graph, ठीक है। By the way, graph क्या होता है? It's basically graph is set of vertices and edges, ठीक है ना। So vertices here are nodes, edges are similarity values, ठीक है। Okay, so one way to cluster graph is to use spectral clustering algorithm. I won't discuss this in detail, but I wanted to mention this clustering algorithms. So these algorithms work directly on the graph and try to find ways in which the graph can be partitioned, and those partitions would then represent clusters. Okay. So there are various algorithms here. For example, in general, the idea is the min cut partitioning. So मतलब ये है कि min cut partitioning लगे. So for example, let's say आपके पास कोई cluster simple 3 points का cluster मैं बनाता हूँ. एक ये point है, एक ये point है, और ये 2 points हैं. वैसे 4 points बना लेता हूँ. अब min cut cluster ये देखता है कि कहाँ मैं इस graph को cut करूँ so that I get 2 graphs such that the cost is minimum. And the cost minimum is decided based on जो edge कटेगा या जो edges कटेंगे उनका sum जो है वो minimum होना चाहिए। तो similarity का जो sum होगा वो minimum होना चाहिए। In other words, we are cutting those edges that have least, they are very far away। ठीक है। So जब भी कोई ग्राफ मिलेगा आप उसको min cut से उसको 2 में पार्टीशन कर सकते हैं। So that would give you 2 clusters। एक क्लस्टर होगा एक पार्ट ऑफ द ग्राफ, एक दूसरा ग्राफ होगा दूसरा पार्ट ऑफ द ग्राफ। So there are algorithms that can do this for you given a graph, but those algorithms can be computationally expensive if your graph is dense। क्यों? Because if your graph is dense, let's say मेरे पास 4 points हैं, fully connected हैं, सारे edges हैं इसमें बने हुए, तो जब भी आप काटेंगे इसको, you will have to cut many edges and trying to find which is the best set of edges to cut such that that set is a minimum is computationally expensive. Of course, this depends on those algorithms. तो हम algorithm detail में नहीं जा रहे, but I'm just trying to give you the intuition. So the complexity of those algorithms increases based on the number of edges, which of course relates to density. If the graph is denser, the complexity becomes much higher. Okay? And most of these algorithms are kind of partitional, bisectional. So bisectional clustering, ठीक है ना? Remember, we also briefly talked about bisecting k-means. So initially आपके पास one cluster होता है, you bisect it into two, and then take each of those separately, and then bisect it into 2 more, and so that you get 4 and so on. So of course, bisecting से भी आपके पास hierarchy बनती है, ठीक है ना? Hierarchical clustering बन जाएगी।
So what I want to conclude from here is the spectral clustering algorithms complexity depend on number of edges. Okay? So it's going to be more efficient if G is sparse. Okay? Okay. So any questions so far? Okay, now I'll talk about how do you making G sparser. Okay? So how can you make G sparser? So one option is threshold on similarity. So what does this mean? So for example, if similarity of two objects xi, xj is less than some threshold t, then set s xi xj equal to 0. From a graphical perspective, जब x जो एज है बिटवीन एक्स आई और एक्स जे, ये बहुत लंबा है, बहुत दूर है, सिमिलरिटी बहुत थोड़ा है, तो वो एज हम ड्रॉप कर देते हैं. वी डोंट कीप दैट एज. ठीक है. So this is one way of making the graph sparser and without losing much information regarding clustering. Remember, clustering में हम क्या कर रहे होते हैं? We are trying to find objects that are close together, most similar. ये कोई क्वेश्चन था? वो पढ़ा रहे हैं सारे ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग. ओके. यार फ्लो में सुन रहा हूं मैं. अच्छा, what is there any question? Because मुझे कहीं से आवाज आ रही थोड़ी थोड़ी, बट ऊंची नहीं है. सर अगर सिमिलरिटी कम होगी हमारी तो फिर हमारे नोड्स करीब होंगे या दूर होंगे? अगर सिमिलरिटी, तो मैं म्यूट कर देता हूँ. अच्छा ठीक है. सर मेरा एक क्वेश्चन था जी. सर अगर सिमिलरिटी कम होगी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, मेरा बस ये कंफ्यूजन है, तो वो ग्राफ के अंदर दूर होंगे करीब होंगे? वो आपका कन्वेंशन होगा ना कि क्या आपने कन्वेंशन रखनी है. इफ सिमिलरिटी थोड़ी है तो वो ग्राफ में दूर होंगे. मतलब डिस्टेंस समझ लेना कि डिस्टेंस ज्यादा है. सिमिलरिटी इज ऑपोजिट ऑफ डिस्टेंस. तो सिमिलरिटी थोड़ी होगी, इसका मतलब वो डिस्टेंस ज्यादा है, तो दे आर फार अवे. तो सर वेट किस तरह करेंगे? अगर डिस्टेंस कम होगा तो फिर तो वेट, मतलब वेट वाली बात समझ नहीं है. फिर क्या करेंगे? फिर से बोले. नहीं तो आपने कहा कि अगर वो होंगे सिमिलर होंगे, डिसिमिलर होंगे तो फिर दूर होंगे. तो डिसिमिलरिटी वैल्यू तो कम होगी, तो एज पे वैल्यू तो फिर ज्यादा होनी चाहिए अगर दूर. पता नहीं, आपकी मुझे क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आया. बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो एज है उसका जो वेट है ना, वो उसकी सिमिलरिटी वैल्यू है. ठीक है ना. अब उसको ग्राफिकली आपने किस तरह शो करना है वेट को, आप कर सकते हैं कि लेट्स से वो ज्यादा सिमिलर है तो उसको आप एज को छोटा बनाएं, करीब बनाएं दोनों पॉइंट्स को. वो कम सिमिलर है तो एज को दूर बना दें. अब ये काइंड ऑफ आपका कन्वेंशन है. ऑफ कोर्स द वेट जो उसका एक्चुअल वैल्यू होगी, जो दूर वाली पॉइंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन
हैव स्मॉलर सिमिलैरिटी, उसकी वैल्यू छोटी होगी। जो 2 पॉइंट्स करीब हैं हमारे स्केल ग्राफ पे, उसके जो एज की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, बिकॉज वो सिमिलैरिटी है। ठीक है, सही, समझ आ गया। समझ आ गई? जी सर, थैंक यू। बाय द वे, ये जो मैं कुछ हाथ हिलाता हूँ, ये आपको लोगों को नजर आता है? यस सर। जी आता है सर। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो एक तरीका तो मैंने बता दिया कि आप थ्रेशोल्ड कर दें। बहुत छोटी सिमिलैरिटी वैल्यू है, लेट्स से आप कह लें कि सिमिलैरिटी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, तो आप थ्रेशोल्ड अपना टी लेट्स से 0.1 रख लें। कोई भी वैल्यू 0.1 से कम है तो उसको फोर्स 0 कर दें। इसका मतलब है कि वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एज आपने खत्म कर दिया। ठीक है, तो वो एक ही एज बना देंगे उसे। नहीं, एक एज नहीं बना देंगे। लेट मी सी। ओके, लेट्स से मैं 3 पॉइंट्स बनाता हूँ। एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, बहुत दूर है, और एक ये पॉइंट है, ये करीब है। तो लेट्स से मेरी थ्रेशोल्ड की वजह से पता चला कि ये वाला जो एज है ये मैंने नहीं रखना, बिकॉज ये बहुत स्मॉल सिमिलैरिटी है। तो इसका एज खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट होगा और ये इनका सिर्फ एज रह जाएगा, उसका एज नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? तो इस तरह आपका ग्राफ स्पार्सर हो जाए। स्पार्सर का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ एजेस कम होते जाएंगे। ठीक है सर। सर, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम एज खत्म करेंगे वो तो इस तरह फ्लोट करता रहेगा ग्राफ में अकेला, तो फिर उसका क्या करेंगे? बिल्कुल ही अकेला रह जाता है फिर तो ऑफ कोर्स वो आउटलायर हो जाएगा, वो तो क्लस्टरिंग में पहले ही निकल जाएगा। लेट्स से मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ कि जो बहुत सिंपल है, बट इन जनरल देयर विल बी अ सिमिलैरिटी वैल्यू फ्रॉम ए पॉइंट टू एवरी अदर पॉइंट। उसमें कुछ एजेस कट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? अच्छा, एक तो ये तरीका है, बट इसका एक तरीका का थोड़ा सा एक इशू है, वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड। The second method is the K nearest neighbor method approach. ठीक है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको K सेट करना पड़ता है। You have to select K which is number of neighbors to consider as for to define the neighborhood. ठीक है? And based on this neighborhood, we would only retain those edges that are हारून, हारून है? अच्छा, ठीक है। आप लगता है ऑफलाइन ऑनलाइन काफी हो रहे हैं, नेटवर्क का इशू है? यस सर, नेटवर्क काफी स्लो है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली मुझे नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, वो आपके कई दफ़ा आप ऑनलाइन हुए ऑफलाइन हुए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो इसमें लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैं सेट k इज इक्वल टू 3, या मैं ओके 3 कर लेता हूँ, और लेट मी शो यू। सो लेट्स से अब इन जनरल लेट्स से मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो फुली कनेक्टेड होंगे। एक ऑब्जेक्ट दूसरे साथ दूसरा लाइन, इसके साथ भी लाइन, इसके साथ भी लाइन, इसके साथ भी लाइन। सो हर एक ऑब्जेक्ट के
हर एक ऑब्जेक्ट के 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके 3 एजेस होंगे. लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. तो लेट्स से ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसका एक एज इसके साथ होगा, एक एज इसके साथ होगा और एक एज इसके साथ होगा. सो 3 एजेस होंगे फुली कनेक्टेड के लिए. ठीक है. लेट्स से मैं इसको ज़्यादा भी कर देता हूँ, 4 ऑब्जेक्ट बढ़ा देता है कि ये है. ठीक. अब ये हमारे पास, ये मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के 4 एजेस आ रहे हैं और लेट्स से मेरे पास मैंने सेट किया हुआ k इज इक्वल टू 3. सो k इज इक्वल टू 3 के अप्रोच में ये है कि वी विल ओनली रिटेन द टॉप 3 मोस्ट सिमिलर एजेस. जो क्लोजेस्ट इसके 3 पॉइंट्स हैं वो हम रिटेन कर लेंगे, बाकी हम ड्रॉप कर देंगे. तो फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस लेट्स से मेरे पास ये एज है तो इसका ये वाला रह गया, ये वाला रह गया और ये वाला रह गया और इसका ये वाला मैंने कट कर दिया. ठीक है. So here we don't use a fixed threshold, we use the number k. तो उसका एडवांटेज क्या है या उसका डिफरेंस क्या है फ्रॉम द प्रीवियस अप्रोच? उसका डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक डेटा सेट है जो एक जगह पे बड़ा डेंस है, यहाँ काफी पॉइंट डेंस हैं और इधर काफी स्पार्स हैं. ठीक है. फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा सेट आप एक फिक्स्ड ग्लोबल थ्रेशोल्ड सेट करते हैं सिमिलैरिटी की, तो ये जो सारे स्पार्स पॉइंट्स हैं ना, ये सारे निकल जाएंगे, ये आउटलायर्स बन जाएंगे. बट इफ यू सेट k इज इक्वल टू 3, देन जो डेंस पॉइंट्स में k3 जो पॉइंट्स बन जाएंगे वो करीब करीब होंगे, ये एक कनेक्टिविटी बन जाएगी और ये स्पार्स रीजन में जो होंगे वो दूर की कनेक्टिविटी बन जाएगी, बट दे विल स्टिल बी कनेक्टेड. 3 हमने एजेस हर एक के रिटेन करने हैं. So do you get this? सर ये रिपीट कर दें प्लीज. So if you have fixed k, in this particular example we have fixed k to 3, so which means that we will retain the top 3 most similar edges or highest value similarity edges for each object. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ जो एजेस हैं उनमें से सिर्फ 3 रखेंगे हम. उसका फायदा ये है, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, if there is an object, if there is a region in your data set which is dense, let's say ये मैंने dense region बनाया है, बेशुमार पॉइंट्स है छोटे एरिया में, तो यहाँ आपके पास भी एजेस छोटे छोटे 3 आ जाएंगे. और लेट्स से आपके पास एक एरिया बहुत स्पार्स है, ये वाला स्पार्स है, तो इधर भी आपके पास 3 कनेक्टिविटी आ जाएगी. बट इफ यू हैड यूज्ड ए फिक्स्ड थ्रेशोल्ड, लेट्स से कोई ऐसी फिक्स्ड थ्रेशोल्ड लेते तो ये सारे एजेस इधर वाले खत्म हो जाते हैं. तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो स्पार्स थे दे वुड ऑटोमेटिकली हैव बिकम्ड आउटलायर्स. सो के नियरेस्ट नेबर अप्रोच से आप डेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. आपका डेटा सेट में लेट्स से डिफरेंट डेंसिटी रीजन्स हैं, वो सारी कैप्चर हो रही हैं. लो डेंसिटी रीजन्स भी आ जाएंगी, हाई डेंसिटी रीजन्स भी आ जाएंगी. Rather than having one global parameter for similarity, you will have relative parameters. जहाँ sparsity है, जहाँ density कम है, वहाँ खुद ही वो फैल जाएगा, और जहाँ density ज़्यादा है वहाँ खुद ही वो contract हो जाएगा. मतलब contract और फैलना मैं in terms of distance बात कर रहा हूँ, dissimilarity. So in the case of a dense graph, if there are multiple नहीं, points ये dense, together, हाँ ठीक है, ये dense जो यहाँ मैं density की बात कर रहा हूँ, ये points की density की बात कर रहा हूँ, ग्राफ की density की बात नहीं कर रहा. okay sir. मतलब पॉइंट्स आपके पास एक स्मॉल रीजन में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं. हमने पहले डिस्कस किया था कि ग्राफ, लेट्स से इफ यू आर गिवन एस, इससे जब आप जी बनाएंगे, जी हमेशा डेंस ही होगा, फुली कनेक्टेड होगा एक्चुअली. ठीक है. तो अब उस फुली कनेक्टेड को मैं स्पार्स बनाना चाह रहा हूँ.
वो स्पार्स बनाने का मैंने जो अभी तरीका बताया वो ये है कि आपने हर एक पॉइंट के सिर्फ 3 नियरेस्ट नेबर्स रिटेन करने हैं। लेट्स से हमारे डेटा सेट में 100 पॉइंट्स से, अब इस ऑब्जेक्ट के 100 एजेस होंगे या 99 एजेस होंगे, हमने सिर्फ 3 रखे, बाकी सारे ड्रॉप कर दिए। So is this clearer? Yes, sir. So इससे जो एक consequence है या आप कह लें कि आता है, वो यही आता है कि we don't have to fix a global similarity threshold. हमारा जो similarity threshold automatically set हो रहा है। Let's say एक object sparse region में है, तो उसमें जो minimum जो similarity होगी वो ज़्यादा होगी as compared to एक another object जो dense region में है, उसमें minimum similarity इसमें मिनिमम सिमिलरिटी कम होगी, इसमें मिनिमम सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा बिकॉज 3 हमने रिटेन किए, वो 3 क्लोजर होंगे, मोर सिमिलर होंगे, जो स्पार्स रीजन में फर्दर हुए होंगे। ओके, सो आई थिंक लेट्स मूव ऑन। ओके, सो अब ये मेरे पास एक स्पार्सर ग्राफ आ गया, either of these approaches. Generally I'll prefer the second approach. So we have now G is sparser. So now you can apply spectral clustering more efficiently. ये लिख रहा है, ठीक है? लिख रहा है सर, लिख रहा है। Okay. Now actually I'm going to discuss not spectral clustering but another algorithm which is quite similar, quite simple and also based on graphs, which has the name called Chinese whispers. So इस एल्गोरिथम का बेसिकली बुक में नहीं है, ये इसका एक पेपर है छोटा सा, वो पेपर मैंने रिसोर्सेज पे अपलोड कर दिया हुआ है, so you can look at that paper and of course you can search it on the web as well. मेरे ख्याल से इसका विकिपीडिया पेज भी है, वो भी आप देख सकते हैं। Okay, so Chinese clustering algorithm, it's a very simple algorithm and the name of course comes from the Chinese game called Chinese Whispers, kind of a children game जिसमें ये होता है कि एक मल्टीपल बच्चे खड़े हुए हैं ग्रुप में, एक बच्चा कुछ विस्पर करता है दूसरे बच्चे को, वो दूसरा बच्चा जो उसने समझा उससे विस्पर हो रहा ना, जो भी उसने समझा वो तीसरे बच्चे को करता है, तीसरा बच्चा चौथे को करता है, फिर फाइनली जो लास्ट बच्चा जिसको जो मैसेज पहुंचा वो सारों को बताता है कि क्या उसने सुना। तो जनरली अलोंग दिस वे, बिकॉज यू हैव whispering, so you have noise being added along the way, जो आखिरी बंदे को जो चीज़ समझ आई होगी, it would be generally vastly different from the first बंदे ने जो उसने कहा होगा। तो ये kind of एक old Chinese game है। आइडिया वहीं से लिया हुआ, although it's not exactly similar, नाम उन्होंने उसी गेम के साथ बना दिया है। Here also we are considering कि we are sending messages from each object to the next object, and then from that message propagation or sending you get clusters. So let's see how that happens. So एक तो notation वही है, we have n objects, ठीक है, and we have a graph for the data set, G for the data set, ठीक है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया ग्राफ किस तरह आता है, of course from a similarity function. So we basically create an adjacency matrix for the graph. So let's say this matrix is A, ठीक है? So A would be n by n matrix, ये भी symmetric होगा, actually symmetric नहीं होगा, निकाल लेता हूँ, because अब हमने sparse बना दिया, इसको symmetric नहीं होगा in general, but it's going to be an n by n matrix. तो
इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल ए आई जे basically means that xi and xj have an edge in G. ठीक है? So in other words a I j is equal to 1 कर दें. Of course more generally ये weighted भी हो सकता है. So this can be equal to s xi xj. So in which case it would be a weighted adjacency matrix. ठीक है? So जब हम weighted करेंगे तो ये actually वही similarity matrix ही बन गया S जो हमने पहले डिस्कस किया था. तो ये A की समझ आ गई आपको? So let's say सर for ए दोबारा simplicity, बता देंगे. let's say for simplicity sake, we say that the matrix A is not weighted, is simply, it's basically in 0 and 1, either 0 and 1. So if it is 0, it means that there is no edge between object I and object J. If it is 1, that would mean that there is an edge between object I and object J. ठीक है? समझ आ गई? Okay. So the algorithm itself, the Chinese clustering algorithm, there are two ways of running this algorithm. One is randomized algorithm. The other is the deterministic approach. So perhaps I'll start with the deterministic first and then come back to the randomized option later on. ठीक है, तो अब matrix A discuss हमने कर लिया. Then there is another matrix B. So this is also an n by n matrix. This is actually a cluster assignment matrix. ठीक है? So let's see what this means. So D I J in general is also in 0 and 1. मतलब इसमें जो values होंगी 0 and 1 ही हैं. तो अब इसका मतलब ये है कि D I J let's say is equal to 1 है, then this implies that object xi belongs to cluster J or is assigned to cluster J. So in other words, ये जो matrix है, इसके जो columns हैं, ये cluster IDs हैं, इनके जो rows हैं, ये object IDs हैं. So both of them at the start are n total number of clusters हैं, total number of objects of course. सर ये डी मैट्रिक्स क्लस्टर असाइनमेंट मैट्रिक्स जो है ये चाइनीज विस्पर एल्गोरिदम का ही पार्ट है. जी वही डिस्कस हो रहा है, चाइनीज एल्गोरिदम ही है. So मेरे ख्याल से I would first discuss the randomized option and then come back to this. So let me go to the figure. So of course B figure drawing में थोड़ा सा मुझे issue होता है. I hope I can make a good. So initially what happens is कि अब मैं छोटा सा एक ग्राफ बनाऊंगा. I say this is object 1, this is object 2
एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 और 2 के दरमियान लाइन है, ऑब्जेक्ट 1 और 3 के दरमियान लाइन है। 1 और 3 की लाइन छोटी है, इसका मतलब ये है कि 1 और 3 ज्यादा सिमिलर हैं। सो फार सो गुड, यस ठीक है। अब चाइनीज क्लस्टरिंग में क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्ट्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। लेट्स से मैं ऑब्जेक्ट 1 सिलेक्ट करता हूँ, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, मैंने ऑब्जेक्ट 1 सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने ऑब्जेक्ट 1 के जितने भी नेबर्स हैं, जो नेबर्स ऑफ कोर्स वो होंगे जिनके साथ लिंक्स हैं, एजेस हैं, मैंने देखना है कि उनके ऑफ कोर्स लेबल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल्स यहाँ ऑफ कोर्स इनिशियली सारे सेपरेट क्लस्टर्स में, ये 1 2 3 मैंने लिखा है, ये ऑब्जेक्ट आईडीज मैंने लिखा था, बट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दिस initially as the cluster IDs. So object 1 is a separate cluster, object 2 is a separate cluster, object 3 is a separate cluster. अब object 1 is closest to, in this सिर्फ दो ही लिंक्स हैं ऑब्जेक्ट 1 के, ऑब्जेक्ट 1 is closer to object 3 than to object 2, ठीक है। तो if that is the case, then what we will do is, ये 1 था मेरे पास और ये 3 था, तो ये जो मेरे पास, सॉरी ये 2 था इधर, ये जो 3 था इसको भी मैं 1 असाइन कर दूंगा। मैं कहूँगा ये भी एक ही क्लस्टर है, बिकॉज दिस इज क्लोजेस्ट टू 1। ये जो 1 मैंने लिखा हुआ ये क्लस्टर आईडी है। सो इन अ वे वी आर नाउ ग्रुपिंग क्लस्टर्स। सो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। सो इनिशियली मेरे पास ये 3 पॉइंट्स थे और मैंने इनिशियली ऑल ऑफ देम वर इन डिफरेंट क्लस्टर्स 1 2 3। I now chose 1 randomly and I found that 1 was closer to 3 than to 2. तो इसका मतलब है कि 3 को भी मैंने सेम क्लस्टर में डाल दिया और उस क्लस्टर को लेट्स से मैं नाम 1 ही कर देता हूँ। तो मेरे पास अब नया जो फिगर बनेगी, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरे पास जो फिगर है ये 1 है, ये क्लस्टर 2 है, ये भी 1 है। अब मेरे पास लेट्स से क्लस्टर 2 से 2 लिंक्स जा रहे हैं। एक लिंक तो ऑफ कोर्स 1 को जा रहा है और एक और लिंक जा रहा है लेट्स से ये ऑब्जेक्ट लेट्स से 4 है, क्लस्टर 4 है, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट, मैंने ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट मैंने कंसिडर किया, इसके 2 लिंक्स हैं। 4 इज फर्दर अवे देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, इसको भी मैं 1 कर दूंगा और ये ऑफ कोर्स वही दूसरा रहेगा 4। अब मेरे पास ये क्लस्टर बड़ा हो गया, तीनों ऑब्जेक्ट्स एक क्लस्टर में आ गए। Do you understand this? So what is happening here is, हर एक ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली और उसके नेबर्स को देख रहे हैं। नेबर्स ऑफ कोर्स दोज आर दैट आर लिंक्ड, और देखेंगे कि कौन से नेबर्स जो हैं उससे मोस्ट सिमिलर हैं। अब जो नेबर मोस्ट सिमिलर है उसका जो क्लस्टर लेबल है और इस ऑब्जेक्ट क्लस्टर लेबल को हम सेम कर देंगे। सो इन अदर वर्ड्स, आपने मैसेज पास किया टू द एंटायर नेबरहुड और जिसका सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी थी आपने उसका मैसेज ले लिया, उसका क्लस्टर लेबल ले लिया। एंड यू रिपीट दिस इन अ रैंडमाइज फैशन। आपने लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 पहले सेलेक्ट किया, नेक्स्ट टाइम 3 कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम 5 कर लेंगे, फिर 2 कर लेंगे, until you converge. Convergence means that there is no change in the cluster assignment.
Okay. So the randomized algo is basically like this. Randomly select an object. ठीक है? Randomly select an object. Then, so first of all, initialization मैं कर देता हूँ. Initially, all objects belong to different clusters. Clusters. So in other words, there are n clusters. ठीक है? ठीक है? So randomly select an object, then assign the object to the cluster to which it is the most similar. ठीक है? That's it. And then you basically, that's it. You repeat this multiple times in a random fashion until no change in cluster assignment. Of course, if there is a tie, if two objects have the same similarity, तो वो आप randomly break कर लेंगे tie. Sir, I had a question. जी. सर यहाँ भी हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स को स्पेसिफाई करेंगे पहले? नहीं, अभी तक मैंने कोई क्लस्टर नंबर ऑफ क्लस्टर्स की बात नहीं की, राइट? सो के हम सर नहीं लेकिन हम करेंगे. जो ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर रहे हैं मुख्तलिफ क्लस्टर्स में, तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ जैसे मैंने वो ऊपर एग्जांपल भी दी थी 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स की, तो उसमें आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो 1 1 1 3 इकट्ठे हो गए थे, तो क्लस्टर उसमें खुद ही बन रहे हैं. द नंबर ऑफ क्लस्टर वो खुद ही डिसाइड करेगा, फाइंड आउट होंगे. वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई अप फ्रंट. ओके सर, गॉट इट. So this is a positive for this algorithm. चाहिए रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम था तो इसको एक मैट्रिक्स ऑपरेशन से डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम भी बनाया जा सकता है. तो ऊपर हमने मैट्रिक्स ए और डी डिफाइन किए थे, राइट? सो द सेम ऑपरेशन कैन बी डन यूजिंग so what we do is basically iterate. So and you basically multiply D matrix with A matrix. ठीक है? ये वही वाला कंप्यूटेशन हो रहा है जो हम पहले देख रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सिमिलैरिटी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू सेम क्लस्टर. जिसकी सिमिलैरिटी मैक्सिमम है वो फिर हम कर देंगे. मेरे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से इसको भी मैं इस तरह डिस्कस करता हूँ. सो मेरे पास जो ओरिजिनल इनिशियली डी था मेरे पास और ए था. इनिशियल डी जो है वो बेसिकली मैट्रिक्स है, डायगोनली में मैं वंस कर रहा हूँ, बाकी सारे जीरो है. व्हाट डज दिस मीन कि ईच ऑब्जेक्ट, रिमेंबर मैंने कहा था ये डी मैट्रिक्स का जो रो है ये ऑब्जेक्ट है और कॉलम क्लस्टर है. तो लेट्स से एक वन मेरे पास इधर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आई बिलोंग्स टू क्लस्टर जे और क्लस्टर आई एक्चुअली डायगोनल में है दोनों. तो इनिशियली हर एक ऑब्जेक्ट को मैंने सेपरेट क्लस्टर में डाल दिया. ठीक है? अब इस डायगोनल मैट्रिक्स को, ये डायगोनल वंस हैं, इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया. ये मेरा मैट्रिक्स ए है. ए में क्या था? एडजेंसेंसी मैट्रिक्स था. सो इस एडजेंसेंसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके मेरे पास समेशन हो जाएगी कि मैक्सिमम सिमिलैरिटीज हर एक क्लस्टर की क्या है. जो मेरे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा इसके बाद, सो डी न्यू, लेट्स से डी न्यू
उसमें मेरे पास वैल्यूज होंगी, ऑफ कोर्स इसमें डायगोनल नहीं होगा, इसमें वैल्यूज होंगी। इफ आई टेक वन रो, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू जिसकी आ रही है, लेट्स से एक पॉइंट पे वैल्यू यहाँ मैक्सिमम सिमिलरिटी आ रही है, लेट्स से 0.6 इधर आ रही है, बाकी सारी छोटी हैं, तो मैं इस 0.6 वैल्यू को 1 कर दूंगा, बाकी सारे 0 कर दूंगा फॉर ईच रो। सो व्हाट हैपेंस देन इज कि मेरे पास जो डी मैट्रिक्स है, इसमें अब 1 मेरे पास नॉन डायगोनल्स आने शुरू हो जाएंगे। लेट्स से एक 1 इधर आया, एक 1 इधर आया, एक 1 इधर आया, एक 1 इधर आया, और एक कॉलम में अब जब आप देखें, लेट्स से एक 1 इधर भी आ रहा है, एक 1 इधर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला रो और ये वाला रो, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों एक ही क्लस्टर में। पहले क्या था शुरू में, जब डायगोनल था, कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट एक क्लस्टर में नहीं था। लेट्स से एक यहाँ 1 था, तो इस पूरे कॉलम में कोई और 1 नहीं है, ठीक है ना। जब एक डायगोनल में थे आप, एक जब 1 था, कोई और आपके पास 1 नहीं था। बट जब आपने ऑपरेशन आइटरेटिवली किया, तो आपके पास ऐसे आ सकते हैं रोज के, इसमें 3 1s आ रहे हैं इस जगह, एक पूरा कॉलम आ सकते हैं सारे जीरोस हों, और एक आपके पास है जिसमें सिर्फ एक आ रहा है, और एक जिसमें बहुत सारे आ रहे हैं, एंड सो ऑन। सो दे माइट बी नाउ क्लस्टर्स दैट आर लेस देन n। कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो सारे 0 होंगे। अच्छा, ये कुछ समझ आया? सो डी एस्ट्रिक ए, लेट्स से ये मेरे पास डी प्राइम, नया डी आ गया मेरे पास, और नए डी के ऊपर फिर मैंने मैक्स रो ऑपरेटर लगाया, ठीक है। तो डी प्राइम पे लगाया, तो ये मेरे पास फिर वापस डी आ गया, एंड देन आई रिपीट। So at the end of the day, I look at D and look at each column of D. Each column of D represent a cluster. So, और उसमें जितने भी ones आ रहे हैं, इसका मतलब वो वाले ऑब्जेक्ट्स उस क्लस्टर में हैं। इसमें लेट्स से कोई कॉलम सारा 0 है, इसका मतलब वो क्लस्टर है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है। So initially हमने n क्लस्टर्स से स्टार्ट किया था। एट द एंड वी विल एंड अप विद, so clusters in general would be less than equal to n at the end. Any questions? ये n नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं या नंबर ऑफ पॉइंट्स? n तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये कंसिस्टेंट नोटेशन हम यूज कर रहे हैं, n नंबर ऑफ ठीक है। पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो शुरू में जब हमने ये एल्गोरिथम स्टार्ट किया था, नंबर ऑफ क्लस्टर्स वर आल्सो इक्वल टू n। रिमेंबर हायरार्किकल क्लस्टरिंग में भी यही होता है, बट दिस इज नॉट ए हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ठीक है। Initially we started with n clusters, and then after each iteration you might find that some rows in the matrix, some columns in the matrix D are all zeros. इसका मतलब है वो cluster है ही नहीं, तो at the end of the day you might end up with clusters that are less than n, and of course this is automatically determined by the algorithm. आपने number of clusters specify नहीं करने, या आप करने की जरूरत नहीं है आपको। So इस एल्गोरिथम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ग्राफ बेस्ड, द नोशन ऑफ क्लस्टर इज ग्राफ बेस्ड,
ठीक है ना. Of course, there are many other algorithms that are graph based. I'm just discussing this one. Spectral clustering algorithms are also graph based. And secondly, that is different from others. This algorithm can be run in a randomized fashion. This can be a positive as well as a negative. Positive ये है कि आप distributed environment में run कर सकते हैं very easily. ठीक है. And by the way, अब remember ये मैंने represent किया था graph में. So you can use this algorithm to cluster, for example, social networks. Like Facebook के networks को cluster कर सकते हैं आप, Twitter के network को cluster कर सकते हैं, and so on. ठीक है. Of course, you can use it to cluster regular clustering algorithms as well, starting from a similarity function and then creating a graph. But if you have a graph naturally, like in a Facebook network, you can still apply this algorithm. ठीक है. So randomize में ये होगा कि हर एक you can do it, look at your own neighbor and not worry about the rest of the network. So this is both a positive as negative. इसका ये है कि you might get different results if you start with different random seeds. आप एक रन आपने एल्गोरिथम का किया, you might get a different clustering. फिर से एक रन किया तो slightly different clustering आ सकती है. ठीक है ना. So it's both positive as well as negative. So positive and negative इसमें है. But this is different from the previous algorithms. तो previous algorithm कोई भी randomized नहीं था. Computational complexity इसकी जो है वो if the graph is sparse, so then it is of course n, I would say, into k, जो उसके neighbors हैं. ठीक है ना. And generally k is going to be very small. K is the number, ये वो वाला k नहीं है, number of clusters नहीं है, number of neighbors. ठीक है ना. Edges / edges कर देते हैं per node. So it's kind of efficient. इतना complex नहीं है, इतना complexity नहीं है. Of course, multiple iterations करनी पड़ेंगी, but multiple iterations k-means में भी होती हैं, old algorithms में भी होती हैं. तो generally, if 5 to 10 iterations में converge कर जाता reasonably. So this is not a partitional algorithm, neither is a hierarchical algorithm. By the way, sorry, it is a partitional algorithm, but we don't need k for it. So hierarchical as such नहीं, hierarchical बना सकते हैं आप multiple runs करके, but generally it's not hierarchical. Okay, any questions? Any questions? जी, question? यस सर. ग्राफ अगर डेंस होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी फिर कितनी चेंज होगी? ग्राफ डेंस होगा तो ये एल्गोरिथम तो चलेगा. there is no issue. Of course, k would then be n, and then we will have complexity would be n square. But generally इसके जो results ज़्यादा बेहतर आते हैं if the graph is sparser. इसलिए मैंने वो sparsity का पहले आपको बताया था. If the graph is dense, then this algorithm is known to not give very reliable results. ओके. ठीक है. So ये भी आप समझ लें कि इसकी characteristic है. Or generally, if you think about natural
ग्राफ्स, जो ग्राफ्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से इवन जो हमारे सोशल इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से फेसबुक के, they usually satisfy the small world क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहना चाहिए. Do you have an idea small world principle क्या होता है? Basically each object is linked to only a few objects, but through those links actually you can connect to every other object in the network. So this is actually saying that कि real world में जो graphs हैं वो sparse ही होते हैं, dense नहीं होते. Alright. ठीक है. अच्छा, next time पर we will talk about cluster validity, validation / evaluation, and we will be following chapter 7 of Intro to DM book for this section. ठीक है, तो ये आप इसकी स्लाइड्स मैंने अवेलेबल की हुई है. बुक का ये चैप्टर भी अवेलेबल है वेब पे, वो भी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट्स? आपका क्विज का एक्सपीरियंस कैसा था? I think quiz itself was easy, but दूसरा experience I wanted to get your idea. सर अगर रोल बैक का ऑप्शन अवेलेबल हो कि प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि जिस हाँ, तरह वो हमारे किसी पास ने ईमेल भी क्विज की में थी, मुझे आता है. नहीं पता था ये ऑप्शन होती भी है कि नहीं होती है, कहाँ होती है, मैं देखना पड़ेगा मुझे. ये कहीं सेटिंग में होगी. आई एम नॉट. रोल बैक का मतलब यही है ना कि जब आपने एक सवाल कर लिया, आप वापस उस सवाल पे जाना चाह रहे हैं, तो ये अभी नहीं अलाउ कर रहा सर. था. नहीं सर. अच्छा, चलें ठीक है, इसको मैं देख लूँगा. टाइम तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ था, 25 minutes फॉर अबाउट 5-6 questions which were very small. यस सर, टाइम का तो कोई इशू नहीं था. टाइम ठीक था. ठीक है. दूसरा एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है कि मोस्ट लोगों ने अटेम्प्ट प्रॉब्ली संडे या संडे नाइट को ही किया है. तो ये फिर कोई आपकी आपस में कोई थी कि इकट्ठा करना आपने मिलके, या क्या करना है? जस्ट आस्किंग. सर वो वीकेंड पे ही टाइम मिला तो वो उससे तैयार वगैरह करके तो संडे को ही फिर इसलिए ज़्यादा लोग सैटरडे कर तक रहे तो थे. मुझे सिर्फ 16 लोग नजर आ रहे थे, तो आज सुबह देखा तो पूरे 100+ हो गए. तो what I'm trying to say here is कि I'm assuming कि you guys are mature, आपने अपनी learning करनी है, so try not to find ways of cheating. So try to do it as a means of gauging what you have learned, and as a way of improving your learning during this this course. ठीक है ना? सर वीकेंड पे प्रोजेक्ट भी था तो वो उसका भी काम काफी था. आपकी आवाज नहीं आई मुझे. वो मैं वैसे ही कह रही हूँ कि वीकेंड पे प्रोजेक्ट भी था तो उसका भी काफी काम था ना, तो वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी तब. प्रोजेक्ट का क्या? प्रोजेक्ट की डेडलाइन एक्सटेंड हमने कर दी है फ्राइडे तक. हाँ जी, वो अपडेट जी. अच्छा, प्रोजेक्ट में एक्चुअली ना दिस गिव्स यू एन आइडिया कि रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स बड़े होते हैं, रियल वर्ल्ड में इश्यूज काफ़ी होते हैं. और रियल वर्ल्ड में माय एक्सपीरियंस आल्सो इन द इंडस्ट्री इज दैट के काफ़ी टाइम आपको प्री प्रोसेसिंग में लग जाता है, डेटा हैंडलिंग में लग जाता है. सो दिस होल प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गिव यू सम एक्सपोजर ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन प्रैक्टिस. तो उसमें फिर इसी तरह के आपको वर्क अराउंड्स ढूंढने पड़ते हैं. आइदर वर्क अराउंड्स आर टेक्निकल इन द सेंस कि आप कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ढूंढें, या फिर आप वही सैम्पलिंग की तरफ जाएं या सबसेट्स डेटा सेट के लें. ठीक है ना? तो जो एनर्जी डेटा सेट ऑब्वियसली वाज वेरी बिग, तो उसमें फिर आई वुड
as suggested by the TA also, okay, you should use a subset and at least get the ball rolling. जी सर, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन सर जो फर्स्ट 90 जो है फाइल्स, उनके अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड टाइपिंग, डायनामिक टाइपिंग मौजूद है, तो खैर जो स्टैंडर्ड Unfortunately, आपकी आवाज में distortion बहुत थी. I couldn't really understand what you said. सर मैं आपको ईमेल कर दूँगी। ठीक है. Maybe you can repeat again, but maybe speak a bit slowly. जी सर, मैं कह रही थी कि वो जो फर्स्ट 90 फाइल्स हैं, उनमें जो टैरिफ के टाइप्स हैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड है, डायनामिक नहीं है। Okay, I think आप फिर email ही कर दें. You are probably talking about the project, so email कर दें. We'll be able to respond to you. मुझे भी कर दें, TA को भी कर दें. ठीक है। अच्छा, क्विज के वापस आते हैं. The quiz में there was one question on in which you had to write something, iterative relocation का. तो इस तरह के राइटिंग वाले क्वेश्चन थोड़े से मैं ज़्यादा कर सकूं आपके लिए, बिकॉज उसमें फिर ज़्यादा मुझे पता चलता है कि आपको समझ आई है कि नहीं आई. Was it easy for you to write a sentence or two? ठीक था सर वो भी। ठीक है, अच्छा. एक ही बंदा बोला, ठीक है. So that's fine. So maybe next quiz में by the end of this weekend एक दुक्का और सवाल मैं डाल लूँगा इस तरह का. सर प्रेफरेबली यही है कि आप सेंटेंस वाला कम रखें, मोर लाइक, बिकॉज हम जिस तरह से अभी कर रहे हैं एमसीक्यूज टाइप, इट इज मोर लाइक कि हम उसको, जैसे वो एक क्वेश्चन था जिसमें आपने मैनहट्टन डिस्टेंस वगैरह निकालना था, उस तरह ठीक है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला शायद डिफिकल्ट इस सिनेरियो में. सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बट व्हाट यू आर सेइंग कि जब मैनहट्टन में आपने ऑफलाइन करके फाइनल आंसर लिख दिया, दैट इज फाइन. क्या सर? एक सर वो ठीक था, मतलब उस तरह से, मतलब सॉल्व करके आंसर लिखने वाला। हाँ वो सही था। अच्छा ठीक है, तो उस तरह के थोड़े से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी मैं दे सकता हूँ। मैनहट्टन वाला तो आप ज़बानी कर सकते हैं ना, वो तो देख के कर सकते थे आप, पेपर पे जरूरत भी नहीं। थोड़ा सा जो पेपर के बेस भी हो तो वो भी मैं कर, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गिव यू मोर प्रैक्टिस। ठीक है सर। सर ये जो फाइनल एग्जाम होगा वो दो, लेकिन वो मतलब ओवरऑल वो बिग बड़े सवाल, बिग क्वेश्चंस वगैरह उसी तरह होगा सॉल्व करने वाला। वो अभी डिसाइड करना है, अभी टाइम्ड होगा या किस तरह होगा अभी डिसाइड करना। एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि आप पेपर पे ही करें और स्कैन करके मुझे वापस अपलोड करें, तो सर वो बेहतर होगा वैसे, क्योंकि वो इक्वेशंस राइट करना वगैरह टाइप करना मुश्किल होता है, तो पेपर वाला स्कैन की ऑप्शन तो है। आजकल मेरे ख्याल पे सारों के पास होती ही है, मोबाइल से वो पीडीएफ स्कैन हो जाता है। जी सर हो जाता है, और बाकी भी क्लासेस में हो रहा है ये चीज़। सर लेकिन मोबाइल से स्कैन करने पे इतना क्लियर शायद ना आए, और बाहर तो शॉप्स बंद है। वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आ जाता है, स्पेशली इफ यू हैव द राइट ऐप, लेट्स से कैम पीडीएफ या और कोई वन नोट का है जो ऐप है, उससे अच्छी हो जाती है, पीडीएफ बन जाती है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करने शुरू कर देना, सो दैट कि वो लास्ट टाइम में कोई आपको हिकअप्स ना आए। हो जाता है सर, वो इतना मसला नहीं होता वो, क्योंकि और टीचर्स भी ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फाइनल इसी तरह का ही होगा, स्कैन वाला होगा। और ये इस तरह जो टाइम्ड मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज लंबे सवाल करना मुश्किल, देना मुश्किल है। जी सर ठीक है सर।
ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से इज देयर एनी अदर कमेंट फ्रॉम योर साइड, अदरवाइज फिर हम इसको रैप अप करते हैं आज का। सर इसके ऊपर एक कमेंट ये था कि लाइक आप जिस तरह कह रहे हैं कि फाइनल एग्जाम भी मतलब स्कैन वाला होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कोई एक आखिरी वाला क्विज उस तरीके से करवा लें ताकि आपको फीडबैक मिल जाए कि स्टूडेंट्स को क्या response आ रहा है। जरा फिर से बोलें, मुझे पूरी बात एंड पे नहीं समझ आई। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट चीटिंग? नो, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना फाइनल एग्जाम स्कैन करके होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई एक क्विज भी स्कैन करवा लेंगे स्टूडेंट से, तो आपको फीडबैक मिल जाएगा कि फाइनल एग्जाम में कोई इश्यूज तो नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। मेरे ख्याल से बिकॉज ये जो लास्ट क्विज बनाया था मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मुझे लग रहा है कि इतना मुश्किल नहीं है छोटे छोटे क्विज बनाना। तो मे बी मैं आपको जो अभी 2 वीक्स रह गए, छोटे छोटे क्विज आपके 2 ले सकता हूँ और आराम से। तो उसमें एक मैं कोई आपको इस तरह का स्कैन वाला भी दे दूंगा। चलें, ओके देन आई थिंक लेट्स रैप अप। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मंडे वेडनेसडे को इंशाल्लाह मिलते हैं।